was the remote, guys. Okay. तो भाइयों आज हम लोग बात कर रहे हैं कि जो मोदी जी ने कल बोला है कि क्रिप्टो के लिए, तो आज मैं आप लोगों को वीडियो दिखाऊंगा बहुत सारे, जिसमें से अपने को पता चलेगा कि भाई कहाँ तक क्या बात का क्या मेजर फैक्ट है, क्या मेजर फिगर है। तो बने रहो मेरे साथ में, मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ रियल ट्रूथ। सुनिए। This is big. Rahul, the Prime Minister, now convening a meeting on cryptocurrency, saying that we cannot allow cryptocurrencies to be misused for money laundering purposes or terror financing. Is the government looking to regulate this market, Rahul? Also, after watching Only there is a history to it. In budget session this year, there was a bill which was in the pipeline in the works as far as cryptocurrencies are concerned, and what it envisaged was closer to what the RBI has been saying in terms of cryptocurrencies, seeking a ban, and it also talked about India having its own digital currency and legitimizing that and banning out all the others. Now, if you see what the information that you also have given from the Prime सिंस लॉन्ग, मतलब बहुत लंबे समय से क्या बताया जा रहा है कि बाबा इंडिया आरबीआई है, इट्स मतलब वो लोग खुद सोच रहे हैं कि बाबा हम लोग खुद की क्रिप्टो करेंसी बनाएंगे। साइमल्टेनियसली कॉस्मोस जैसी जो पावरफुल बैंक्स हैं, जो समझदार बैंक है, उन्होंने अपनी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च की है। क्रिप्टो करेंसी क्या होती है उससे पहले मैं छोटा छोटा आप लोगों को पहले ही भी बता चुका हूँ, तो थोड़ा सा और जानूं, मैं आगे वीडियो को और बढ़ाता हूँ। Minister's office stating that there are unregulated advertisements and there is a lack of transparency and there is a sense of over-promising. Now that does give an indication that regulations are coming. So guys, transparency, a real word. मैं बहुत पहले इस शब्द को जो हमारे सम्मानजनक जो पत्रकार जी हैं, उन्होंने जो शब्द बोला ट्रांसपेरेंसी, मैं उसके ऊपर बात करना चाहूंगा। हर चीज में ट्रांसपेरेंसी चाहिए। वी रिक्वायर ट्रांसपेरेंसी इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट ऑल्सो। बिकॉज ऑफ दैट दिस करेंसी केम इनटू द पिक्चर, बिकॉज पीपल लव द ट्रांसपेरेंसी। ओके, लेट्स गो अहेड। India today is being told that there is a bill which is in the offings for which a lot of groundwork has been done. The Finance Ministry, the Home Ministry, the SEBI, and also the RBI have been in consultation. The RBI in April 2018 came up with a law banning the cryptocurrencies. Supreme. Guys, one more thing. There is no drum faking. There is nothing. बस ये फिर से कहानियां बनाई जा रही हैं, फिर से कुछ तो बॉल उछाली जा रही है। बैट भी इस बार लगेगी और इतनी दूर जाएगी बॉल के चिथड़े भी नहीं मिलेंगे। लेट्स सी, गो अहेड। Court in 2020 March lifted the ban and it said that it was not a wise move. And after that there is a lack of regulations and clarity. Now the clarity is needed on whether it's a currency. If it is a currency, do the gains become capital gains and need to be paid in terms of income tax and direct taxes? If it is a service. Okay guys, मैं बोलता हूं कि लास्ट टाइम मैंने आपको बोला था क्रिप्टो क्या है। क्रिप्टो इज अ टर्म, इज अ प्रॉपर्टी, हैव सम वैल्यूएशन, बट I don't know why people making nonsense noise, which again it very harmful for the human, for the nature. इसीलिए बोलते हैं दोस्तों कि हमें पॉल्यूशन को कम करना है, पॉल्यूशन को बढ़ाना नहीं है। बट द प्रॉब्लम इज दैट कि कुछ ना कुछ लोगों को ना खुजली है, तो वो खुजली वाले लोग जो है ना, वो जो खुजली वाले हमारे यहाँ पर तो बोलते हैं खुजली वाले कुत्ते, उनको भौंकने के सिवा nothing else. Okay, go ahead for the next thing. Does it need to come under GST? Now the government realizes that the market potential and economic potential of cryptocurrencies is big. It does not
not want to do what China has done, a complete blanket ban on cryptocurrencies. It realizes it can create employment and create revenue, and that is why what we are hearing, not a blanket ban, but definitely a regulated market mechanism, which might be employing best practices from across the globe, which is a more moderate. Guys, अब जो बात हो रही है वो बात हो रही है कि ये यूथ को बहका रहे हैं, यूथ को फुसला रहे हैं। भाई, यूथ को ये बात समझ में आती है कि उसको क्या करना है। They are more intelligent, they are more sophisticated, they are more love to win, to know the achievements, and they really want to set some great goal which undone, which no one can done, no one can achieve. Actually, India want this thing. We don't want our old peoples, those who are interfering in any fucking scene. We don't want. So guys, it's my request to the respected or whatever the words we are using for giving a good gestures to someone. But as of now, I'm so angry because I don't know why the people doing the fucking game or the fucking word, put it everywhere. It's a bloody shit. This is the thing. And I'm going to be show some more videos, some more powerful videos. Those presented by the great people, the great mans. But I don't know. I don't know. In between, something has happened, and I don't. It's real because क्या होता है कि भाई कुछ चीजें बिल्कुल रियल होती हैं, कुछ भी फेक नहीं होता उसमें। तो जो रियल चीजें हैं वो इतनी पेनफुल होती है लोगों को कि वो कंज्यूम नहीं कर पाते, उसको खपा नहीं पाते। पहली चीज। दूसरी चीज, देखो ट्रांसपेरेंसी, आपको क्या ट्रांसपेरेंट समझना है, क्या ट्रांसपेरेंट समझना है। हर कॉइन की एक फ्रीक्वेंसी है, हर कॉइन की एक वैल्यूएशन है, उसकी एक लिमिटेशन है। उसके बाद में वो कॉइन कभी मार्केट में बढ़ नहीं सकता, उसे कोई बना नहीं सकता। अब उस कॉइन की वैल्यूएशन मतलब उस प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन, इधर वो गोल्ड है, स्टील है, प्लेटिनियम है, उसकी एक वैल्यूएशन है। मार्केट प्रोड्यूस सम वैल्यूएशन ऑफ एनीथिंग, आई एम सेइंग एनीथिंग। बट जब उसी भी एनीथिंग की कोई वैल्यूएशन है तो उसमें ट्रांसपेरेंसी की क्या जरूरत है। आई डोंट नो दैट हाउ मच गोल्ड इन दिस अर्थ एंड हाउ मच नीड टू बी माइंड, बट How powerful is an Invisalign smile? Who's ready to So powerful, you can face anything, even these faces. And this is a powerful thing. Path is in the offing. All right, Rahul, thank you so much for all of those details. So a moderate path could be in the offing. The government could bring a bill to Parliament during the winter session, which doesn't imply a complete ban, but certain regulatory mechanisms could be put in place as well. India faces a big question at this moment. How do you deal with the reality that there are at least a crore? The industry estimates that 10 crore people who currently invested in digital currency. India has the world's highest cryptocurrency users. So what should we do with the fact that you have a completely unregulated, hugely volatile currency, which people in our office, as I'm sure in yours, are delving in on an hourly basis? The government is talking about a legal framework to regulate and govern this booming cryptocurrency investment market, which could see the light of day in the months to come. It was Business Today Television that first broke the story 3 weeks ago.
that there is a law that is currently being drafted and regulation is currently being worked on. Since then, things seem to be moving fast. Finance Ministry sources say the bill could be tabled in the winter session of Parliament and it could be law by the time the budget session is presented. Here is our lead story tonight. गाइस देखो, बहुत ही सिंपल और बहुत ही समझदारी वाली बात है कि आप किसी चीज को के बारे में जानना चाहते हो. क्यूरियोसिटी इज गुड बट ओवर क्यूरियोसिटी इज बैड. तो कुछ लोग ओवर ये हो गए हैं कि मतलब कुछ ज़्यादा क्यूरियोसिटी आ गई है, कुछ ज़्यादा चीज़ों को जानने की कोशिश कर रहे हैं. कुछ लोग ऐसे हैं जो जानकर समझदारी से चुपचाप करके बैठे हुए हैं. अच्छा, मैं जो ये बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी, ये सब कुछ है, ये मैं आपको बहुत प्रिसाइज में बहुत पुराने अपने वीडियोस में समझा चुका हूँ कि ये क्या चीज़ है कि इसको आप संभाल नहीं पाओगे. मैं किसी भी गवर्नमेंट को बोल रहा हूँ कि अगर वो किसी भी समझ में ये है कि बाबा आप इस पे कंट्रोल कर पाओगे तो आई एम सॉरी, आप डिजिट पे कंट्रोल नहीं कर सकते हो. और ये तो डिजिट बढ़ेगी तो कंट्रोल करना. हाँ, आपको मैं एक सजेशन दे सकता हूँ, आप कोई बिल मत बनाओ. लॉकडाउन में हमने जितने बिल देखे हैं ना, दे ऑल आर वेरी पेनफुल यार. किस स्मार्ट पीपल ने बनाए हैं, किस स्मार्ट टीम ने बनाए हैं, किस लोगों को लॉस के लिए कैसे बिल बना लेते हो यार आप लोग. मतलब ठीक है, इट्स अ डेवलपमेंट एंड वी आर ग्रोइंग, वी आर डेवलपिंग, बट हाउ यू आर डूइंग, इट्स बैड, इट्स नॉट गुड. तो भाई कॉमेडी करो, खूब हंसो. इतना मत हंसाओ कि शरीर और दिमाग दोनों परेशान हो जाए. तो मैं ये कह रहा हूं, हमारे देश के साथ में बहुत सारे लोग बहुत अलग अलग तरीके की पॉलिटिक्स खेलते रहे. वो दिमाग शांत हो जाएं, वो चुप हो जाएं. जो अननेसेसरी परेशान होना चाहते हैं, तो मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं, मैं उनको परेशान कर सकता हूं. अननेसेसरी कुछ ऐसा मत करो कि गलत हो. दूसरा, आप अगर बात करते हो कि ठीक है मैं कॉइन्स बंद करूंगा जिसकी कोई कैलकुलेशन, कोई वैल्यूएशन और कुछ नहीं है. भाई, कॉइन इज अ प्रॉपर्टी. पहली चीज, अगर उस कॉइन के वाइट पेपर्स हैं, प्रॉपर राइटिंग है, प्रॉपर राइटअप्स हैं, अगर आप उस चीज को देखोगे, आप उस चीज को समझोगे, तो आप समझ पाओगे कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है. फिर आप उसके ऊपर लॉ बनाओगे तो इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम. व्हाई यू आर वेस्टिंग अ टाइम ऑफ ट्रू पीपल्स? स्टॉप वेस्टिंग. I tell you, stop wasting. Time is a money, and now at this era, money is a time. Don't waste money. Don't waste money, Mr. Modi. I tell you, don't waste money. Because we always try to earn money with our hard efforts. We are putting blood, we are putting everything for earning a single coin, whatever it is, a Bitcoin, whatever it is, a one single rupee. You are wasting a time, you are wasting a money, you are wasting this nation, the youth, the power of this nation. You are wasting, and we are very much expected that you have a guy, you should do all these things, but listen. 10 crore investors, 8,000 crore rupees invested. That's how much is loaded on the crypto bandwagon in India, even though the wagon is traveling a road that is yet to be mapped out. But there's good news for the millions who want a regulatory shield before investing in crypto. Business Today TV reported in October that cryptos could be a legal asset class in a few months, a clear departure from an earlier approach which proposed a complete ban on cryptocurrencies.
Sources say the government is likely to opt for regulated cryptocurrencies, just as it does with commodities, with a गाइस, मैं आप लोगों को ये बोलता हूं कि इसमें से कौन सा नेता है इसमें से जो कंप्यूटर की ए की बटन ढंग से प्रेस कर लेगा. The thing is that, and these all intelligent peoples are sitting somewhere and wasting their time for researching something unpredictable, unvaluable. These guys, they all are very intelligent, sharp-minded, of Indian. Actually, they represent India. So they are the guys, those who are thinking behind digits, and some of them they exactly not know the exact figure of every coin, कि उस coin की value कितनी दूर तक जा सकती है. Anyone sitting in this panel, these all are very intelligent, sincere, determined guys. Those who get the chairs, bloody chair actually, because हमारे कंट्री में जो भी खेल हो रहा है सब चेयर के पीछे हो रहा है, सब चेयर पे बैठ के हो रहा है. और हमको बस वही समझना है, मैं बस खाली इस देश को वही समझाना चाहता हूं कि भाई जिस दिन ब्रिटिशर्स हमारे कंट्री से गए थे वो ऐसे चटकुल्ले छोड़ गए थे जिन्हें चाटने की आदत पड़ी हुई है. चाट के देश की हमारे देश को चाट गए, परेशान कर दिया सिंस 10 ईयर. कुछ पागल ऐसे हैं, दे जस्ट वांट कि अगर मैं खाना, अरे मेहनत करेंगे पर मेहनत करने के लिए जगह चाहिए. वी वांट स्पेस, वी वांट हेल्प फ्रॉम द गवर्नमेंट, फ्रॉम द पीपल्स दो आर सिटिंग समवेयर. तो ऐसे कुछ प्लान्स नहीं है हमारे पास में, प्लान्स नहीं है फार्मर्स के लिए, हमारे पास प्लान्स नहीं है, कुछ नहीं. हमारे लिए प्लान्स है बिजनेसमैन के लिए. जो आए हैं, जो भाई पहले भी आए थे ना हमारे पास में, अंग्रेज आए थे, वो बिजनेसमैन बन के आए थे हमारे देश में. उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमारे पर रूल किया, हमसे सोना चांदी सब कुछ हमसे बटोर के अपने देश में भर दिया. कुछ दिन पहले ऐसे ही मैं एक वीडियो देख रहा था, तो रास्ते में एक समुद्र में एक क्या बोलते हैं, एक शिप डूब गया था ब्रिटिशर्स का, यहाँ से खाली करते समय जब वो जा रहे थे. 1947 भी कह सकते हो आप लोग, पर वो बहुत लंबे समय से जा रहे थे. करोड़ों टन्स ऑफ गोल्ड अपने शिप में ऐसे करके ले गए. वो प्रॉपर्टी थी वो इस नेशन की, और वो धरोहर थी मेरे भारत की, आपके भारत की. फिर नए चूते आए, उन्होंने कुछ और, वो हैं सब चाटने वाले, वो एक दूसरे की चाट के तंदुरुस्त हो गए, ऐसे बैठे हुए हैं. They are sitting somewhere for doing lots of nonsense fucking scenes over there. But we Indians, those who love their nation, तो उनका क्या है कि वो बस प्यार किए जा रहे हैं और देश के लिए किए जा रहे हैं. और हमें बचपन से पढ़ाया जाता है, कि पढ़ाया नहीं जाता, एक्चुअली हम पढ़ते ही वही हैं कि भाई देश के लिए करने का, क्योंकि देश अगर आगे बढ़ेगा तो हम आगे बढ़ेंगे, हमारा परिवार आगे बढ़ेगा, हमारा आने वाली पीढ़ियां आगे बढ़ेंगी. पर इस देश को ले जाना किसने है? हम सब ने. Are you expected these guys are going to be take somewhere, anywhere, anyone, because they all are sitting together for doing something good or fucking somewhere for someone. So this is the bloody politics of India. बात करता हूं अपने देश की, अपने भाइयों की, कि ये है क्या पूरा स्कैम. ये कुछ नहीं, ये थोड़ी देर बैठेंगे, खेलेंगे, समझ में इनको कुछ नहीं आने वाला, तो ये कुछ तो करेंगे. डरने का नहीं, डरने का किसी से भी नहीं. इस वर्ल्ड में कोई भी कंट्री अगर क्रिप्टो करेंसी के साथ में नहीं है, दिस इज माय वर्ड, कोमो सिसोदिया, अगर कोई कंट्री क्रिप्टो के साथ में नहीं है, बिटकॉइंस के साथ में नहीं है, तो वो कंट्री ज्यादा दिन सस्टेन नहीं कर सकती. बिकॉज क्या होता है, देखो,
जब मैं वही मोदी जी को बताना चाह रहा था कि देखो होता क्या है, फिनांस के बहुत सारे इकोनॉमिस्ट और ये सब बैठते हैं जब साथ में, तो बातें करते हैं, पर कुछ वैल्यूएबल अगर थॉट्स हम निकाल सके तो हम लोग एक यूजफुल सॉल्यूशन पे पहुंच सकते हैं जिस टाइप का। तो सॉरी, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि भाइयों, अभी इंडिया की बात हो रही है, तो मैं बोल रहा हूँ भाइयों कि होता क्या है कि भाई अगर हम साथ में बैठे हैं तो कुछ वैल्यूएबल बातें करें, कुछ फैक्टफुल बातें करें, और आपको चेयर दी है उसके लिए हमारी कंट्री, यार मैं मेरे जैसे और भी हजारों लाखों लोग करोड़ों लोग मेहनत करके आप लोगों को रखा है उधर। सही सोचो ना यार, देश की तरक्की, देश के विकास की बात करो। मैं आपके साथ हूँ हर विकास के मोड़ पे, मैं आपके साथ में हर एक टॉपिक को लेकर बात करने के लिए तैयार हूँ। आप आगे तो बढ़ो, हम बढ़ाने के लिए तैयार है, हमारा देश आप लोगों के साथ में है, पर आप लोग बुलशिट 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 खेल के रह गए हो। फकिंग बुलशिट, डू समथिंग सेंसिबल। आप लोगों ने अगर बोला है कि ठीक है प्रोटोकॉल्स बनाएंगे कुछ, आप फाइंड आउट ही नहीं कर पाओगे कौन सा पॉइंट वैल्यूएबल है कौन सा नहीं है। पहले तो आपको टाइप्स ऑफ पॉइंट्स पता होने चाहिए। पता है क्या आपको? बस आपने बोल दिया ये और वो और ये और वो। अरे कुछ भी है क्या? मतलब आपको तीर में कमान फंसा के बस फेंकते रहने का। फेंकते हैं ना भाई, हम लोग एटीएम की लाइन में लग लिए ना भाई, लग लिए। और ट्रांसपेरेंसी की अगर बात करते हो तो ट्रांसपेरेंस भारत चाहिए मुझे, हमारे देश को, हमारे देशवासियों को। तो जरूरत है जिन चीजों की वो हमें करना होगा, हमें मिलके चलना होगा, समझदारी भरी पलों को हमें अपने साथ जोड़ना होगा। तो समझदारी भरी बातें कौन करता है? कुमुद सिसोदिया। कौन सुनता है? कुमुद सिसोदिया के व्यूअर्स। तो सब्सक्राइब करते रहो, लाइक करते रहो, मजा आता रहेगा, मजा आता रहेगा। तो दोस्तों जुड़े रहो कुमुद सिसोदिया के साथ में, भारत की बात, सच्ची बात आप तक लाता रहूंगा। ऐसे नमूनों को पूरी तरीके से नकाबपोश करके छोड़ूंगा। यही है कुमुद का एक वादा, नहीं रुकेगा कुमुद, समझ गए? ऐसे और भी वीडियो हैं आज की डेट में। अभी आज के लिए मैं आपको ये वीडियो देने वाला हूं, आप लोग इसको देखो। बिटकॉइन से डरो मत, ये बस खाली हमारे कंट्री में या कुछ ऐसी समझदार कंट्रियां हैं जो वहां के लोगों को ग्रो नहीं करने दे रही हैं, उनको सर्टेन प्रोटोकॉल्स में बांधने की कोशिश कर रही हैं। और देखो, इंसान को बांधना शुरू किया गया बहुत पुराने समय से। अगर देखा जाए पहले क्या करते थे, मैं अगर पुरानी बातों पे आऊंगा तो बहुत सारी लंबी वीडियो बन जाएगी, तो समझदारी वाले काम करो। बहुत सारी वीडियोस पड़े हुए हैं, थोड़ा यूट्यूब देखा करो, वहाँ यूट्यूब के बारे में कुछ मूवीज भी देखो, बहुत कुछ है। समाज को जिस तरह से बनाया गया हम उसको बदल सकते हैं। वो पुराना समय था, उस समय चीज़ों की जरूरत वैसी पड़ती थी। अब मशीन से ज़्यादा हमारे पास में, मशीनों से ज़्यादा तेजी से काम कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी बनी हुई हैं इस संसार में। मंदिरों को अगर हम देखो, पूरे जो पुराने अल्प बोल सकते हैं, अल्प शिप हैं जो मतलब अरे पुराने मॉन्यूमेंट्स हैं, जो ओल्ड मॉन्यूमेंट्स, ओल्ड टेम्पल्स हमारे अर्थ पे बहुत सारे हैं जो मशीनों द्वारा बनाए गए हैं। और लगता नहीं है, मतलब जैसे मैंने उसको रिसर्च किया, दूसरे लोगों की वीडियोस वगैरह देख के मैंने पाया, तो मतलब मशीनों से बहुत सारे ऐसे काम हो सकते हैं जो पॉसिबल हैं। तो उस टाइम पे मशीन नहीं हुआ करती थी, इंसान हुआ करते थे, इसलिए इंसानों को बंधुआ मजदूर बनाया जाता था। बंधुआ मजदूर बना के उनसे टैक्स लिया जाता था, जिससे कुछ परिवार, कुछ चीजें चलती थी। ठीक है, तो बस वो है कि वही सिस्टम चलाना चाहता है संसार। वो सिस्टम से अब थोड़ा सा इंसान अलग आना चाह रहा है। इसकी वजह से डिजिटल करेंसी की वैल्यूएशन हुई है। वैल्यूएशन कैसे तय होती है मैं वो भी बता दूं। वैल्यूएशन तय होती है कि कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट उस चीज के पीछे चल रहा है। अगर कोई ये बोलता है कि नहीं नहीं यार ऐसा हो रहा है, ये रैप अप होता है, नहीं, आप उस कॉइन की वैल्यूएशन, उस प्रॉपर्टी की, जैसे एक रियल लैंड वैंड ये सब होते हैं ना, जमीनें वगैरह होती हैं, गोल्ड होता है आपका, आज 30,000 का, कल 45,000 का हो गया, वैसा ही इसके साथ में भी होता है। अगर आप कहीं पर भी वैल्यूएबल जगह पे, वैल्यूएबल वॉलेट में उस करेंसी को रखते हो, तो उसकी एक टाइम पे आने के बाद में कुछ ना कुछ वैल्यूएशन होगी। बट
ये आपको समझना है कि कहीं वो करेंसी, वो एनएफटी, वो टोकन आपका वैलिड है या नहीं है वैलिड। अगर वो वैलिड नहीं है तो जाहिर सी बात है आप उसको जल्दी से ट्रांसफर भी नहीं कर सकते इधर उधर, बिकॉज इट्स अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। तो जब वो वैलिड ही नहीं है तो ट्रांसफर नहीं होगी। पहली चीज, इसमें इतनी सारी ट्रांसपेरेंसी ऑलरेडी है। मोदी जी, देयर इज नो नीड ऑफ एनी रिसर्च, आई टेल यू वेरी फ्रेंकली। तो आप जबरदस्ती रिसर्च किए जा रहे हैं, वो बनी बनाई चीज को यार तुम उसको उसके अंदर भी घुस जाओगे क्या यार? मोदी जी मजाक चल रही है क्या? हर जगह नहीं घुस सकते आप, इसकी जगह आपको मौका दिया गया पर आप फेल हो गए हो। आई एम सॉरी टू से दैट। देश को नहीं चला पाए यार। मेरा देश तो बहुत प्यारा देश है। तो देश वासियों के दिल में आपने जगह तो बनाई पर घर नहीं कर पाए। तो जरूरत है समझ की, जरूरत है बूझ की, जरूरत है काम की। सो टेक केयर गाइस। मैं फिर से बोलता हूं, चैनल को लाइक कर लो। मैं इतनी बजा के जाने वाला हूं, कि बुरा करने वाले की ना बीप बीप हो जाएगी। टेक केयर गाइस। जय भारत, जय हिंद।